In this PowerPoint presentation from the Delhi Law Academy on the Constitution of India, we shall have a detailed discussion on the very important topic of the appointment of judges to the Supreme Court. We shall study this topic in three parts. Firstly, the constitutional provision as provided in Article 124 Clause 2 of the Constitution. Secondly, the judicial interpretation as reflected from the four very important judgments from the Supreme Court. And lastly, a critical analysis of this interpretation and what the law ought to be. The constitutional provision as contained in Article 124(2) is as follows. A judge of the Supreme Court shall be appointed by the President after consultation with such Supreme Court judges and High Court judges as the President deems necessary. The appointment is to be made by the President. Before making the appointment, he shall consult with certain judges. These judges will be from the Supreme Court and the High Court. Which judges are to be consulted, that is to be decided by the President. उसके बाद एक और important provision है. As far as other judges of the Supreme Court are concerned, Chief Justice of India shall always be consulted. This provision hardly needs any interpretation. इसमें कोई ambiguity है ही नहीं. The words used in this provision are plain and simple. इन वर्ड्स का कोई दो मीनिंग हो ही नहीं सकता, तो इंटरप्रिटेशन की एज सच कोई जरूरत पड़ती नहीं है. It is clear that President is the appointing authority and before making the appointment, he is required to consult the Chief Justice and some other judges of the Supreme Court and High Court. Chief Justice को कंसल्ट करना ही करना है और कुछ और जजेस को जो सुप्रीम कोर्ट से होंगे और हाई कोर्ट से होंगे उनको कंसल्ट करना है. It is for the President to decide as to which other judges he needs to consult. After consultation, it is the President who shall decide and make the appointment. President को दो काम करने हैं. एक तो ये तय करना है कि किन जजेस को कंसल्ट करना है और दूसरा कंसल्टेशन के बाद उसको ये डिसाइड करना है कि अपॉइंटमेंट किन का करना है. सुप्रीम कोर्ट का भी यही इंटरप्रिटेशन था 1993 तक, लेकिन 1993 में कुछ हुआ. पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन सा जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट का भी यही व्यू दिखाता है जो अभी हमने देखा. दैट वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट इज SP Gupta versus President of India, 30 December 1981. This is also known as the first judge's case. ये जजमेंट 7 जज बेंच ने दिया था और इसमें सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंसल्टेशन बताया गया है. कंसल्टेशन वर्ड यूज हुआ है आर्टिकल 124(2) में. उस कंसल्टेशन का मतलब क्या है? Wherever the President exercises power in consultation with the Chief Justice of India or other constitutional functionaries, the consultation has to be on all relevant aspects which would enter the final verdict. किस तरह का कंसल्टेशन होना चाहिए? सारे रेलिवेंट एस्पेक्ट्स में होना चाहिए जो कि फाइनल वर्डिक्ट के लिए जरूरी हैं. लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन क्या होगा? The President has a right upon consideration of all relevant facts to differ from the other constitutional functionaries. खुद सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच 1981 में ये कहती है कि प्रेसिडेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज से जिनसे उन्होंने कंसल्ट किया है उनसे डिफर करने का राइट है. He has a right to differ from the other constitutional authorities. Of course, it should be for cogent reasons, and when he differs, then he can take a contrary view. But the interpretation changed color in 1993 and the green changed into the red. कुछ ऐसा हुआ 1993 में कि ये सारी जो इंटरप्रिटेशन अब तक चली आ रही थी 1950 से लेकर 1993 तक,
वो सब चेंज हो जाता है और वो पाथ ब्रेकिंग जजमेंट आता है। जजमेंट का नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिसाइडेड ऑन 6 अक्टूबर 1993। दिस इज आल्सो नोन एज द सेकंड जजेस केस। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, लेट अस सी। फर्स्ट, in making appointments to the Supreme Court, the primacy must lie in the final opinion of the Chief Justice of India। ये पहली बड़ी बात है जो 1993 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपॉइंटमेंट के मामले में प्राइमेसी है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन को दी जाएगी। ये पहली बार हुआ। और ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस का मतलब क्या है ये फिर आगे एक्सप्लेन किया गया है। The opinion of the Chief Justice of India did not mean the individual opinion of Chief Justice। ये भी एक नई बात आई है। अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन की बात हो रही थी, तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है तो सब कोई यही समझता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही रिफर किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच को ये लगा कि इसका मतलब ये नहीं है, उसका इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, तो किसका है? इट मेंट हिज ओपिनियन फॉर्म्ड कलेक्टिवली, that is to say, after taking into account the views of his senior colleagues who are required to be consulted by him। तो ये कलेक्टिव ओपिनियन होगा, चीफ जस्टिस अपने सीनियर कलीग्स से कंसल्ट करने के बाद ये ओपिनियन बनाएंगे। और उसके बाद 1998 में प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस किया था सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 143, जिसको हम एडवाइजरी ओपिनियन कहते हैं। और इस एडवाइजरी ओपिनियन रेफरेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया, जिसको थर्ड जजेस केस भी कहा जाता है। इन रे स्पेशल रेफरेंस 1 ऑफ 1998, आल्सो नोन एज द थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस में जो ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का वो ये है। पहली बात, द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विच हैज प्राइमेसी इन द मैटर ऑफ रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। ये बात 1993 वाले जजमेंट से आ रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन को प्राइमेसी दी जाएगी। किस चीज में? इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये जो ओपिनियन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिसको प्राइमेसी मिलनी चाहिए, दिस ओपिनियन हैज टू बी फॉर्म्ड इन कंसल्टेशन विद द कॉलेजियम ऑफ जजेस। ये उनका अपना इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं होगा। यही बात 1993 के जजमेंट में भी कही है। उसको और रिफाइन करते हुए इस जजमेंट में कॉलेजियम वर्ड यूज किया गया है और कहा यह गया है कि द कॉलेजियम ऑफ जजेस विल गिव द ओपिनियन। इस कॉलेजियम में कौन लोग होंगे? दिस कॉलेजियम should consist of the Chief Justice of India and the 4 senior most queen judges of the Supreme Court। So the collegium will comprise of 5 judges, Chief Justice plus 4 senior most judges। In making a decision, the collegium takes into account the views that are elicited by the Chief Justice of India from the senior most judge of the Supreme Court who comes from the same high court as the person proposed to be recommended। इस जजमेंट में यह भी बताया गया है कि कॉलेजियम किस किस को कंसल्ट करेगा। तो एक अथॉरिटी जो एडिशनल है कॉलेजियम के अलावा, 5 के अलावा, वो है द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु कम्स फ्रॉम द सेम हाई कोर्ट। जिस हाई कोर्ट से एलिवेशन करने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में कोई जज बनेगा तो वो हाई कोर्ट से एलिवेट होकर ऊपर आएंगे। तो जिस हाई कोर्ट से प्रपोज्ड जज आने वाले हैं, वहां से आने वाले सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट किया जाएगा। दिस इज कंसल्टेशन बाय द कॉलेजियम। पहले बात यह थी कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे, अब वो सब चेंज हो गया और प्रेसिडेंट नहीं कंसल्ट करेंगे, कॉलेजियम कंसल्ट करेगा। और जो डिसीजन होगा कॉलेजियम का, वो डिसीजन कंसेंसस पे होना चाहिए, यानी सबका एग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर कंसेंसस नहीं होता है, जिसकी संभावना हमेशा बनी रहती है, तो अगर कंसेंसस नहीं होता है, देन नो वन कैन बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट अनलेस हिज अपॉइंटमेंट इज इन कंफर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हाँ तो होनी ही चाहिए। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट देना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यस के बिना नहीं हो सकता। ही हैज बीन गिवन द वीटो पावर। If the majority of the collegium is against the appointment of a particular person, that person shall not be appointed. तो डिसीजन मेजोरिटी से होगा, लेकिन मेजोरिटी में हमेशा चीफ जस्टिस का ओपिनियन तो साथ में होना चाहिए। और एक बड़ी बात आगे इस जजमेंट में कही गई है, इस एडवाइजरी ओपिनियन में कही गई है, इफ इवन टू जजेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग व्यूज फॉर गुड रीजंस that are adverse to the appointment of a particular person, the Chief Justice of India would not press for such appointment. तो 5 जजेस का कॉलेजियम है, उसमें अगर 2 जज भी किसी प्रपोज जज के एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो उस पर्सन को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। हालांकि 3 जज उसके फेवर में, 5 जजेस के कॉलेजियम में से 3 जज किसी को अपॉइंटमेंट करने के फेवर में और 2 जज उसके बारे में एडवर्स ओपिनियन रखते हैं, तो ऐसे पर्सन का भी अपॉइंटमेंट रिकमेंड नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन करना है तो कम से कम 4 जजेस उस रिकमेंडेशन के फेवर में होने चाहिए और उन 4 में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड ऑलवेज बी देयर। सो व्हाट इज नीडेड फॉर ए रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट as per this advisory opinion is, out of the 4 collegium judges, out of the 5 collegium judges, 4 should be in favor of the appointment और उन 4 में से चीफ जस्टिस भी एक होने चाहिए। और उसके बाद एक और बड़ी बात कही है कि सीनियरिटी वर्सेस मेरिट। जब अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन करता है कॉलेजियम तो क्या प्योरली सीनियरिटी से जाना चाहिए या मेरिट से जाना चाहिए? सो द एडवाइजरी ओपिनियन सेज दैट इट इज द मेरिट विच मैटर्स। सो वेयर देयर इज आउटस्टैंडिंग मेरिट, द possessor thereof deserves to be appointed regardless of the fact that he may not stand high in the all India seniority list or in his own high court. ये एडवाइजरी ओपिनियन था, 1998 में दिया गया। बट दिस वॉज ओनली एन एडवाइजरी ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143, लेकिन धीरे धीरे यही लॉ बन गया है और अब ये बाइंडिंग हो गया प्रेसिडेंट पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट यही है कि एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन इस केस में ये बाइंडिंग फॉर्म में आ चुका है। तो अभी तक जो हमने देखा वो आज का लॉ है। दिस इज व्हाट द लॉ इज। Now we will have a critical analysis of this interpretation given by the Supreme Court to Article 124 Clause 2. और उसके बाद हम देखेंगे कि लॉ होना क्या चाहिए, what the law ought to be. Our further discussion will be in 2 parts. Firstly, a critical analysis of this interpretation, and secondly, what the law ought to be and why. तो क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो आर्टिकल 124(2) में है वो सिंपल वर्ड्स में ये है, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस एज द प्रेसिडेंट डीम्स नेसेसरी। इसमें बहुत क्लियर है अपॉइंट कौन करेगा, किस तरह करेगा, कंसल्ट करने के बाद करेंगे। कंसल्ट किसको करना है, जजेस को करना है। कौन से जजेस को कंसल्ट किया जाएगा ये प्रेसिडेंट को डिसाइड करना है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑलवेज कंसल्ट करना है। इतना ही रिक्वायरमेंट है आर्टिकल का। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द प्रेसिडेंट शैल डिसाइड विच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर टू बी कंसल्टेड इन ईच केस ऑफ अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट शैल डिसाइड, क्योंकि जो वर्डिंग यूज किया गया है आर्टिकल में वो है एज द प्रेसिडेंट डीम्स नेसेसरी। तो इसके हिसाब से प्रेसिडेंट शैल डिसाइड विच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर टू बी कंसल्टेड। लेकिन इंटरप्रिटेशन क्या हो गया है, द सुप्रीम कोर्ट सेज इन इट्स इंटरप्रिटेशन दैट वी एंड नॉट द प्रेसिडेंट शैल डिसाइड विच जजेस आर टू बी कंसल्टेड।
कौन से जजेस को कंसल्ट किया जाएगा, ये प्रेसिडेंट को नहीं डिसाइड करना है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। और कर दिया उन्होंने, किसको कंसल्ट करना है। दिस विल बी द कोलेजियम ऑफ द 5 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड नो जज ऑफ द हाई कोर्ट्स। हालांकि आर्टिकल 124(2) हाई कोर्ट के जजेस को भी कंसल्ट करने की बात कह रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हाई कोर्ट के जजेस से कोई कंसल्टेशन प्रेसिडेंट को नहीं करना है, सिर्फ 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना है। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, डिसीजन प्रेसिडेंट का है। द सुप्रीम कोर्ट सेज वी एंड नॉट द प्रेसिडेंट शैल डिसाइड हु इज टू बी अपॉइंटेड। सुप्रीम कोर्ट कहता है डिसीजन प्रेसिडेंट का नहीं है, डिसीजन हमारा है, डिसीजन हमारे कॉलेजियम का है। कॉलेजियम डिसाइड करेगा कि किसको अपॉइंट करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड द पावर टू अपॉइंट इन द प्रेसिडेंट। पावर टू अपॉइंट किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट में। द सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स इंटरप्रिटेशन हैज रेंडर्ड द प्रेसिडेंट ए रबर स्टाम्प। एंड हो क्या गया है, those persons who were to be merely consulted have now become superior even to the appointing authority. In any case, the collegium system of appointment of judges as ordained by the Supreme Court was not considered suitable by the directly elected representatives of the people of India who comprise the Lok Sabha and the state legislative assemblies. And as a result, in 2014, the Constitution was amended by way of the 99th Amendment Act. The effect of this amendment was that Article 124, Article 217 and Article 222 were amended. And 3 new articles were added, 124A, 124B and 124C. एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किया गया और नए आर्टिकल्स को ऐड किया गया। एंड द एंड रिजल्ट इज दैट दिस अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड आल्सो फॉर ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। इस अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 124(2) read like this: a judge of the Supreme Court shall be appointed by the President on recommendation of the National Judicial Appointments Commission. यही आर्टिकल 124(2) पहले ये था कि a judge of the Supreme Court shall be appointed by the President after consultation with such judges of the Supreme Court and the High Court which the President deems necessary apart from the Chief Justice of India. अब वो सारी चीज हटा के और इसको ब्रॉड बेस्ड कर दिया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन ही रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेगा। देन आर्टिकल 124A जो नया ऐड किया गया, दिस आर्टिकल प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC। इसका क्या कंपोजिशन रहेगा ये आर्टिकल 124A बताता है। एंड लेट अस सी व्हाट आर्टिकल 124A सेज। द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन वाज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। 6 मेंबर कमीशन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल बी द चेयरपर्सन। इस कमीशन का चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस एक्स ऑफिशियो। 2 other senior most judges of the Supreme Court, members ex officio. तो जुडिशरी से कुल मिला के there are 3 persons, the Chief Justice plus 2 senior most judges of the Supreme Court. Out of 6, 3 representing the judiciary. 4th, Union Minister in charge of law and justice. This is the only person from the executive. A minister in the Council of Ministers. The Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha, and the Lok Sabha represents the people of India. There is 1 representative from there, and 2 eminent persons who are to be nominated
and these were also members. तो कुल मिला के 6 मेंबर्स की ये कमीशन होता है, जिसमें 6 में से 3 जुडिशियरी से डायरेक्ट है, एक ही एग्जीक्यूटिव से है और 2 एमिनेंट पर्सन्स बाहर से हैं, वो न जुडिशियरी वाले हैं न एग्जीक्यूटिव से हैं. So essentially it was a broad based commission for appointment of judges. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन होता है. इसी एसोसिएशन ने पहले 1993 में वो जजमेंट ऑब्टेन किया था. इसी एसोसिएशन ने 2015 में 99th अमेंडमेंट को चैलेंज किया एंड एज ए रिजल्ट वी हैव दिस जजमेंट by the name of Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India, rendered on 16th of October 2015. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड डिस्कशन किया है कि आर्टिकल 124A में जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का कंपोजिशन दिया हुआ है वो क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है. क्लॉज उसमें अभी हमने देखा 4 क्लॉज हैं, A, B, C एंड D. A में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और B में है 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, यानी A और B कंबाइंड करके और जुडिशरी का रिप्रेजेंटेशन बताते हैं. C में एग्जीक्यूटिव का रिप्रेजेंटेशन एंड D में आउटसाइडर्स का रिप्रेजेंटेशन. नाउ सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट इज डीलिंग विद ऑल दीज क्लॉजेस वन बाय वन. लेट अस सी व्हाट ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन टू दीज क्लॉजेस बाय द सुप्रीम कोर्ट. सबसे पहले क्लॉजेस ए एंड बी. अभी हमने देखा क्लॉजेस ए एंड बी में 3 रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी के हैं. सो द कोर्ट सेज क्लॉजेस ए एंड बी ऑफ आर्टिकल 124A डू नॉट प्रोवाइड एन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू द जुडिशियल कंपोनेंट इन द NJAC. द कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जुडिशियल कंपोनेंट. हालांकि 6 में से 3 जुडिशरी से लिए गए हैं, फिर भी कोर्ट सेज इट इज नॉट एडिक्वेट. 6 में से 3 इज नॉट एडिक्वेट. The court further says clauses A and B are insufficient to preserve the primacy of the judiciary in the matter of selection and appointment of judges to the higher judiciary. 6 में से 3 मेंबर जिसमें एक चेयरमैन भी है, ये इनसफिशियंट है प्राइमेसी ऑफ द जुडिशरी. प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी कहाँ लिखा है कोई नहीं जानता. प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी क्यों होना चाहिए ये भी कोई नहीं जानता. और ये टच स्टोन बन गया है कि प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए. 6 में से 3 को भी सफिशिएंट नहीं माना गया है एंड इसके कारण से द सेम आर अकॉर्डिंगली वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. तो चूंकि 6 के कमीशन में से 3 ही मेंबर जुडिशरी के हैं तो ये इनसफिशिएंट है और ये इनसफिशिएंट है इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो वायलेट हो जाता है. ये पहली बात. फिर क्लास सी में आते हैं. क्लास सी में जो एग्जीक्यूटिव का रिप्रेजेंटेशन है एक मेंबर का, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि दिस क्लॉज सी इज अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बियॉन्ड बात है. बिकॉज क्यों है बियॉन्ड बात? बिकॉज द इंक्लूजन ऑफ द यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द NJAC सिंपली बिकॉज वन पर्सन हैज बीन इंक्लूडेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. ये कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड बात हो गई. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से ही कहता है कि अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. तो अगर एग्जीक्यूटिव से एक भी मेंबर इस कमीशन में आ गया तो ये बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बात हो गई एज पर द सुप्रीम कोर्ट. और इसलिए क्लॉज सी इम्पिंजेज अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स. ये फिर से अटैक हो गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की. एक मेंबर 6 में से एक मेंबर एग्जीक्यूटिव से आ गया और ये हमारी जुडिशरी पे अटैक हो गया, इंडिपेंडेंस पे अटैक हो गया. एंड क्लॉज डी जिसमें 2 एमिनेंट पर्सन्स फ्रॉम आउटसाइड, इसके बारे में कोर्ट का कहना है कि दिस प्रोवाइड्स फॉर इंक्लूजन ऑफ 2 एमिनेंट पर्सन्स एज मेंबर्स and this is ultra vires the constitution for a variety of reasons and therefore this is also violative of the basic structure of the constitution. तो चारों क्लॉजेस पसंद नहीं आए. In the above view of the matter, all the clauses A to D of Article 124A are liable to be set aside and therefore they are struck down. And in view of this striking down of Article 124A, the entire 99th Amendment Act is liable to be set aside. तो मेन ग्राउंड ये है कि जो NJAC का कंपोजिशन है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में
एक एग्जीक्यूटिव का मेंबर आ कैसे गया और दो बाहर के लोग आ कैसे गए, इस ग्राउंड पे ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट प्लस स्टेट असेंबलीज ने मिल के लाए थे वो स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। नो, इसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट उभर के आता है, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सारा कुछ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर आधारित है। तो ये चीज कहां से आ रही है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज कमिंग फ्रॉम विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो खुद कोर्ट का ये कहना है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि द डिडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इमर्ज फ्रॉम ए कलेक्टिव रीडिंग ऑफ आर्टिकल्स 12, 36 एंड 50। तीन आर्टिकल्स का नाम लिया गया है और तीन आर्टिकल की कलेक्टिव रीडिंग करेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी निकल के आता है। नाउ यू विल रिकॉल आर्टिकल 12 में एक ही बात है, स्टेट की डेफिनेशन, एंड उसमें लिखा है स्टेट इंक्लूड्स, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देन गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, देन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, देन लोकल अथॉरिटीज एंड देन अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सिर्फ स्टेट की डेफिनेशन है, स्टेट की डेफिनेशन से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी निकल के आ रही है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 36, इसमें भी स्टेट की डेफिनेशन है। आर्टिकल 36 सिंपली सेज कि स्टेट की डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 में है वही यहाँ पे लागू होगी। सो इट डजंट ऐड एनीथिंग, इट सिंपली रिपीट्स व्हाट आर्टिकल 12 सेज, एंड देयरफॉर यहाँ भी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की कोई बात ही नहीं है एक्सेप्ट टू से व्हाट इज मेंट बाय द स्टेट। और आर्टिकल 50 लास्टली जो बात करता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी इन पब्लिक सर्विसेज। हायर जुडिशरी की बात ही नहीं है उसमें, और सेपरेशन की बात हो रही है, किसको प्राइमेसी देनी है ये बात उसमें बिल्कुल नहीं है। तो दिस इज व्हाट आर्टिकल 50 सेज, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। इन तीन आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद डिफेंसिव है, ये आप देखेंगे जो उनके अगले ऑब्जर्वेशंस हैं। द कोर्ट फर्दर सेज it is sometimes not possible to deduce the concerned basic structure from a plain reading of the provisions of the constitution. The court says that independence of judiciary is a basic structure, part of basic structure, और ये plain reading से नहीं पता लग रहा है, because the court is also aware कि 12, 36 और 50 आर्टिकल्स को पढ़ने से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के नहीं आ रहा है। Therefore they are very careful and they have themselves observed that it is sometimes not possible to deduce the concerned basic structure from a plain reading of the provisions of the constitution. तो फिर अगर plain reading से नहीं पता चल रहा है तो कहाँ से पता चल रहा है? Now comes the all important observation. At times such a deduction is made from the all important silences hidden within those articles. So the court says कि आर्टिकल 12, 36 एंड 50 में कुछ साइलेंसेज छुपी हुई हैं और उन साइलेंसेज से ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का।